Good morning dear student, and let's start today's class. In your last class we have completed our discussion on preparation of ether, and in this class we will discuss about the chemical properties of ether. एबे आमे chemical properties of ether discussion करिबा. So this is our topic, chemical properties of ether. And in the chemical properties, first we will discuss that formation of alcohol, or you can say reaction with HI. This we will discuss. Remember, as far as the concept concerned or examination point of view, this is very important. Concept दृष्टिकोण रू हो किंबा एग्जाम रो मार्क दृष्टिकोण रू हो, this is very important reaction or important topic. So try to understand properly. Reaction with HI. Reaction is actually very easy, not so difficult, but here some concepts required that a student has to be clear. So this is your ether that you have, and when this ether reacts with HI, then what the product form, this is very simple. Here this OR bond is the polar bond and this bond will break. So either this bond may break or this bond may break. When both the R are same, there is no issue. In that case, when this bond will be break, suppose this oxygen will carry, now not suppose, finally oxygen will carry negative charge on it, because between oxygen and carbon, oxygen is more electronegative and positive charge will be on this R group. And in the reagent you have used H plus and I minus, H plus and I minus. So what will be the product here? O minus will attach to H plus, or O minus will attach to H plus, and R plus will attach to I. The product will be your alcohol, ROH plus RI. This is the product that you will get. So basically ether, when reacts with halogen acid like HI, it gives you alkyl halide and your alcohol. से alcohol देबो एवं alkyl halide देबो. तुम्हें कहबो सर रिएक्शन तो बहुत इजी है. So what you are saying, you need more concept on it. I am saying this is very important. This is because when this R group will not same, suppose both the R group that is attached to the ether, when both are different, then in that case which bond will break, that is one of the important question. Means once you know that which side will break, then it is clear. Suppose R and R dash is there, then in that case a student has to clear that which side bond is going to clip, whether this bond will creep or this bond will creep. Means suppose it is path 1 and it is path 2. So if path 1 will take place or path 2 will take place, to know that a student has to clear about the concept of SN1 and SN2. गोटे स्टूडेंट SN1 आउ SN2 कॉन्सेप्ट जदि क्लियर अच्छे ताहले ये क्वेश्चन से इजीली करि पारिबो जे को साइड रे बा को साइड रो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हेबो. हाँ, व्हेन आर ग्रुप आर सेम, in that case no issue, that no need to know the SN1 or SN2. Here you can easily say that no sir, this bond will cleave and this will give alcohol or RI, because if you will break this side also, the same product will obtain. So when both R are same, there is no issue to the reaction. But when R groups are different, in that case you have to clear about the SN1 and SN2 concept. And if I am sure that I have already taught this SN1 and SN2 concept, ଆଉ तुमको मु कहा हितला SN1 से ही सबट्रैक्ट रे हेबो जो सबट्रैक्ट रे कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हेबो, बा कहा हितला जदि इंटीमेट आयन पेयर जदि फॉर्मेशन हेबो ताहले हमें सेटा SN1 मेकानिज्म थ्रू रू हमें सेटाकू प्रोसीड कला बोली कहू. तो SN1 थ्रू रे कहा हितला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हुए, तो सेति पे सेतरे कहा हितला टर्शियरी, इफ टर्शियरी इज देयर then that will more prefer to go through SN1, because in tertiary carbocation is more stable carbocation. So if tertiary group is there, then it is preferable to go through the your SN1 mechanism less than that of secondary, माने secondary ताठु टी कम रहिबो. Similarly primary नेले SN1 हेबार चांसेस आउ कमी जीवो. ठीक सेमती SN2 रे उल्टा थिला. SN2 रे कोन हितला, in SN2 primary will be more preferred, then secondary and then tertiary. एटा बुझा हितला, because
in SN2 you are discussing about the simultaneous attack of nucleophile and the going of living group माने nucleophile आसीबा एवं living group जीवा simultaneously हुए सेति पई जेति कि तुमरो कम बल्कियर ग्रुप लागिवो सेति कि अधिका SN2 हबार चांसेस बेसी अछि जेंति कि CH3I थांता ताले एई जगह SN2 आहुरी फास्टर ही थांता बिकॉज तीनटी हाइड्रोजन लागिछि सो दे विल क्रिएट लेस रिपल्सन and with the increase in bulkier group R group the SN2 reaction becomes less preferable because steric repulsion बढ़ी जाए कारण SN2 रे न्यूक्लियोफाइल आसीबा एवं लिविंग ग्रुप जीवा साइमल्टेनियसली ही थाए किंतु SN1 रे कोन हुए आमे कार्बोकेटान रो स्टेबिलिटी देखू सो टर्शियरी कार्बोकेटान इज मोर स्टेबल दैट्स व्हाई in tertiary alkyl halide it will prefer to go through the SN1 mechanism से SN1 mechanism through रू tertiary जदि अछि ताले हेबार संभावना बेसी अछि माने जदि तमरो कार्बोकेटान जदि फॉर्मेशन होउछि बा इंटीमेट आयन पेयर जदि फॉर्मेशन हेई पारिबो ताले सेही केस रे SN1 हेबार संभावना बेसी रहे बा जदि स्टेबल कार्बोकेटान फॉर्मेशन होउछि ताले SN1 हेबार प्रेफरेंस बढ़ी जिवो एटा तुमरो आगुरु मु पढ़ाई सारी कारण SN1 रे कार्बोकेटान थ्रू हुए और SN2 रे साइमल्टेनियस अटैक हुए न्यूक्लियोफाइल रो अटैक एवं लिविंग ग्रुप जीवार प्रोसेस तो साइमल्टेनियसली ही थाए एटा मु आगुरु SN1 SN2 रे कहि सारी थिली और एई कांसेप्ट ही एई जगह रे यूज हबो चलो हम डायरेक्ट एग्जांपल कले बुझी परिबो हाउ वी विल गो एंड वी विल डिस्कस टोटली दिस कांसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल मु धीरे धीरे एटा एग्जांपल करेबी तुम समस्त बुझी जीवो आराम से CH3OCH3 सपोज डाइमिथाइल इथर देइची एंड यू आर गिवन HI तुमको ए जगह रे HI दिया गला सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर प्रोडक्ट कोन हबो ए केस रे प्रोडक्ट नाउ you will see both R group are same so in this case you don't need to use much amount of memory here ए जगह रे तुमको तुमर माइंड बेसी खर्चा करबा को पड़िबो नै कारण both the sides are same group then in that case you can break any side suppose I will break this side means O minus and CH3 plus this carbon is plus so what will be the product H plus and I minus is there so the answer will be CH3OH CH3OH plus CH3I माने गोटे पिला जदि ए साइड भी ब्रेक करिवो से समान प्रोडक्ट बाहरिबो सो यार थ्योरी कोन हबो डाइमिथाइल ईथर on reaction with HI gives methanol and methyl iodide this is theory completed and methyl iodide बुझी पारलो डाइमिथाइल ईथर reacts with HI to give methanol and methyl iodide क्लियर है समस्ते तमे जदि ए रिएक्शन रो मते मेकानिज्म जदि पचारिबो if you will ask me the mechanism of this reaction I can draw the mechanism but remember in your exam it is not asking the mechanism exam रे तुमको mechanism पचारू नहीं but still fast reaction पाई मु mechanism ए जगह रे करि दउची how the reaction has been proceeding I am doing it देखो हमर जो HI अछि HI is a strong acid so it will give H plus and I minus now in the first step what will happen the ethereal oxygen it will donate its lone pair to the H plus माने ether रो प्रथमे प्रोटोनेशन हबो so ether रो ऑक्सीजन ता एक्टिवेट हबो केमती H plus को अटैक करी की देखो H plus को ether ऑक्सीजन रो लोन पेयर अटैक करिवो H plus कोठु आसीबो HI रू आसीजी so what is the product obtained in the next step in your next step you will get CH3OH because oxygen is attacking its lone pair to the hydrogen and it is CH3 and this is plus now the nucleophile will come ebe nucleophile asibo so now when this nucleophile will come nucleophile kotu asibo jagare I minus here I minus is the nucleophile ei jagare I minus hela amaro nucleophile now this I minus will come so now question arises to which carbon this I minus will attack whether it will attack to this carbon or it will attack to this carbon because with the protonation of this oxygen now this group becomes a very good living group so a bond bhi break hi pare this bond may break or this bond may break so to which carbon this I will attack suppose the I is attacking to this carbon means this bond will come to here and now if I will attack to this carbon then this bond will come to the oxygen are you getting my point in this case suppose it is path 1 or path 2
Now you will realize here path 1 is in the same environment and path 2 is also in the same environment. तो इन्हें path 1 कले भी जो प्रोडक्ट बाहर path 2 कले भी सही प्रोडक्ट बाहर because both are CH3 यही जगह से कार्बन रो एनवायरनमेंट चेंज ही नहीं तो सेति पय तुम path 1 थ्रू रु करिवो भी जहाँ प्रोडक्ट बाहर path 2 थ्रू रु कले भी सही प्रोडक्ट बाहर तुम जानि पारुछ जगह को बॉन्ड साइड को बॉन्ड क्लीवेज होउची because both bond cleavage are same here. तो सपोज आमे path 1 थ्रू रु जदी लिखिला ताले प्रोडक्ट कोन बाहर ए जगह रे प्रोडक्ट बाहर this I minus will attack to here and this bond will come to here. So the product will obtain. देखो path 1 मु करिछि ता प्रोडक्ट कोन हबो एई बॉन्डटा ब्रेक हो जाइछि तो एटा कोन बळी गला CH3OH बाहरी गला बुझी पारला समझते प्लस I minus का को अटैक करिछि CH3 को अटैक करिछि so I minus when it is attacking to CH3 it's become CH3I देखो से समान प्रोडक्ट बाहर लागी नहीं. Now here one question I want to ask that from this to this step it will be a SN1 or it will be a SN2. How to know? A step रू a step को SN1 हला ना SN2 हला तमे केमिति जानिबो. How to know that whether this has been proceeding through SN1 or SN2? मु तो ए जगह देखाई देली. If you will see, suppose let's think it is proceeding through SN1. आमे कहिला जे ए सबस्ट्रैक्टटा SN1 थ्रू रु हैला बा ए रिएक्शनटा SN1 थ्रू रु हेची ता माने कोन एथि कार्बोकेटन फॉर्मेशन हेतिबो केमती I माइनस परे आसीथिबो. नाउ सपोज ए स्टूडेंट इज सेइंग सर दिस रिएक्शन इज प्रोसीडिंग थ्रू SN1 जदि SN1 थ्रू रु हेची माने सपोज कहूची लेट दिस रिएक्शन में प्रोसीड थ्रू SN1 माने सेही स्टेप रे कोन हेतिबो प्रथमे लिविंग ग्रुप जाइथिबो माने CH3OH प्रथमे बाहरी जीवो तापरे CH3 प्लस हेथिबो and to this CH3 plus I minus may attack and it will give CH3I. एटा तो जदि SN1 हेथिबो ताले रिएक्शन एमती दुईटा स्टेप रे हेथिबो. Now I am asking you a question. CH3 plus stable की dot CH3 plus is stable सी तातरे किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अच्छी की नहीं. CH3 plus is very unstable because tertiary carbocation is high stable so methyl carbocation is less stable or not. तो CH3 plus जेहेतु unstable हैला बा मिथाइल कार्बोकेटायन जेहेतु स्टेबल नुहे सेथि पाई SN1 थ्रू रु हेई नथिबो. बुझी पारला समझते. तो जदि गुटे टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हेई थांता ई जगह रे ताहले रिएक्शन SN1 थ्रू रु हेची बुला में कहि थांते कारण गुटे स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हबार संभावना अछि किंतु CH3 प्लस गुटे स्टेबल कार्बोकेटायन नुहे सेथि पाई रिएक्शन SN1 थ्रू रु हबो नाही. तो रिएक्शन को थ्रू रु हबो रिएक्शन SN2 थ्रू रु ही हेबो. बुझी पारलो. हाँ जदि ए इथर रे जदि एमती कार्बोकेटायन हबार संभावना थांता if the ether has a possibility of forming this kind of carbocation that is tertiary or another also benzyl either tertiary दो किंबा benzyl carbocation जदि formation हबार संभावना अछि ताहले जाई SN1 हबो नहले in other cases it will be SN2 mechanism. बुझी पारल समस्ते केतेबेले SN1 हबो जदि ए ब्रेकेज हला परे जदि ए भलिया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हबार संभावना अछि माने टर्शियरी टी ब्यूटिल कार्बोकेटायन बा टर्शियरी कार्बोकेटायन किंबा बेंजाइल कार्बोकेटायन आल्सो देन इन दैट केस द रिएक्शन may proceed through SN1 otherwise the reaction will proceed through SN2. तो तुम जानि पारबो इथर को देखि कि एक्चुअली प्रथम स्टेप तो प्रोटोनेशन हबो तापर तुम इजीली जानि पारिबो इथर को देखि कि जे SN1 थ्रू रु हेथिबो ना SN2 थ्रू रु हेथिबो. बुझी पारला समझते. तो ये रिएक्शन डायरेक्ट एमती लिखि देलो तुम एई जगह आराम से लिखि पारिबो एटा SN2 थ्रू रु हेथिबो माने न्यूक्लियोफाइल आसीबार एवं लिविंग ग्रुप जीवार प्रोसेसटा साइमल्टेनियसली हेथिबो. एतिकी क्लियर हे गेलो समझते. आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दिस. जदि तुम या बुझी पारल ना ताहले आउ थरे टिके प्रीवियस को बैक करिकी देखिकी आकु प्रोसीड कर कारण ए स्टेप पर्यंत बुझीबार बहुत इंपोर्टेंट थिला. ठीक अछि. तो ए दुटा केस को मन रखि था जदि ए केस अछि ताहले SN1 हेबो अदरवाइज SN2 थ्रू रिएक्शन जीवो. आमे आहुरी एग्जांपल डिस्कशन करिबा. लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑन दिस मेकानिज्म समस्त लिखि देला ये गारे केमती हला फर्स्ट स्टेप रु प्रोटोनेशन हला और प्रोटोनेशन हला परे आमे देखिबा जे SN1 थ्रू रु होउची ना SN2 थ्रू रु होउची काहे कि देखिबार इंपोर्टेंट अछि मु आगु को बुझेबी. I will explain that why it is important to note that SN1 or SN2. Suppose it is like this
CH3 CH2O CH2 CH3. Now in this case, if I will add Hi, then is there any doubt that to which side the bond will break? There should not be any doubt, because both the sides are same. Here also ethyl is there and here also ethyl is there. So you can break any side of bond of this oxygen bond. Suppose I am a side break करूँ किंबा a side break करूँ, same thing, because here also ethyl is there and here also ethyl is there. Suppose I will break from this side. If I will break from this side, then this is O minus and CH2 plus. Now you can easily say what will be the answer, H plus and I minus. To which side O minus will attack? O minus will attack to this H plus and I minus will attack to this CH2 plus. So what will be the product? No need to write the mechanism. Mechanism no lekhe ki tame direct product likhi paribo. Otherwise, if you are interested to write the mechanism, you can practice also. O minus to H plus lagibo. So CH3 CH2 OH ethanol he gala. Tapare CH3 CH2 I asi gala. CH3 CH2 I. So you got, I can write the theory. The diethyl ether reacts with Hi to give ethanol and ethyl iodide. To give ethanol and ethyl iodide. Diethyl ether will react with Hi to give ethanol and ethyl iodide. Got it? Yes. Now the question arises whether it will be SN1 or SN2. Check karo. Does tertiary is there? Tertiary achi ki kimba benzyl achi ki nahi? तो reaction definitely SN2 through ही हेतिबो. Clear? All clear on this? All clear on this? All clear on this? Okay. Now let's move to another question. ए सब एग्जांपल तुम खातार लिखु था. डाइथाइल इथर और इथोक्सी इथेन कहले भी चलिबो. CH3 CCH3 CH3 O CH3. Yes, to this compound I will add Hi. Now what would come to your mind? That here both the sides are different. This CH3 is group there and T-butyl group is there here. So in this case, to which side bond is going to cleave, this is most important. And to know that which side bond will cleave, a student has to know first the reaction will proceed through SN1 or the reaction will proceed through SN2. A reaction SN1 through habo na SN2 through habo gote student को जानिबा दरकार अछि. So let's first do it with the mechanism. आमे चलो mechanism सहित करिबा. If we first step रे कोन हुए protonation हुए. In the first step it undergo protonation. प्रथम step रे protonation हुए, means this lone pair will attack to H plus and so you will have this kind of substrate जो जगह रे कि इथेनॉल ऑक्सीजन एक्टिवेट होउची. Now this to this, whether intimate ion pair will form or not. Intimate ion pair formation हेबो ना नहीं बा कार्बोकेटायन formation हेबो ना नहीं. Carbocation formation हेबो because a tertiary group is there. If this side bond will break, then a tertiary carbocation will form, and as a tertiary carbocation is formed, that's why the reaction will proceed through SN1 mechanism. Because ए जगह रे गोटे स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होउची. तो टर्शियरी कार्बोकेटायन जेतेबेले फॉर्मेशन हे गला ताहले CH3 CCH3 CH3 प्लस हे गला. ये कार्बोकेटायन हे गला. एबे ए इलेक्ट्रॉन ने की पळेची तो CH3OH बाहरी गलानी. तो इथानॉल बाहरी गलानी ऑलरेडी. और टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन एबे ए कार्बोकेटायन को I माइनस अटैक करिवो एंड इट विल गिव CH3 CCH3 CH3I. से टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड देबो आ मिथानल बाहरिबो. तो ताहले जदि मु इटा तो मु मेकानिज्म थ्रू रु लिखली. जदि डायरेक्ट लिखिबो केमती करिवो को साइड रे बॉन्ड ताले क्लीवेज होउची. जो साइड रे टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हेउची सेही साइड रो बॉन्ड को तुमे क्लीवेज कर देबो. यू विल क्लीव दैट साइड ऑफ बॉन्ड. और वंस जदि सेही साइड रो बॉन्ड क्लीवेज कर देलो तापरे हे गला माइनस आ ये हे गला प्लस. एबे तुमर आंसर इजी हेइबो. तो गोटे पिला मेकानिज्म न लिखि कि भी से डायरेक्टली आंसर बाहर करि पारिबो. केमती टर्शियरी कार्बोकेटायन जो साइड रे थिबो सेही साइड रो बॉन्ड टाको क्लीव कर दबो. और सेही साइड रो बॉन्ड को क्लीव कला परे ये C प्लस O माइनस हे गला. एबे H प्लस और I माइनस बाकी रहला. सो H प्लस और I माइनस जो रहिला, H प्लस का को अटैक करिवो O माइनस को. तो O माइनस अटैक कला H प्लस को, I माइनस अटैक कला टर्शियरी कार्बोकेटायन को. तो ताहले जे प्रोडक्ट कोन बाहरला
CH3 CCS3 CS3 एठी आई लग गला तापरे CH3OH हो गला। देख बिना मेकानिजम रे भी तुम लिखि पारुथबा कथा कारण एग्जाम रे यदि मेकानिजम करिवार टाइम न थाए आउ दरकार भी नाही। ठीक अच्छे आ रिएक्शन कौ थ्रू प्रोसीड होइतिबो SN1 थ्रू होइतिबो। मु ए क्वेश्चन रो आंसर को थ्रू मेकानिजम भी कहि देइछि आ बिना मेकानिजम भी ट्रिक कहि देइछि जो साइड टर्शियरी कार्बोकेटन रहिला कारण एठी माइंड रे किंतु एटा रहिबा कथा जे एटा SN1 थ्रू हेबो काहे कि एठी टर्शियरी कार्बोकेटन हेबार संभावना अछि। आ जदि टर्शियरी कार्बोकेटन हेबार संभावना नथांता ताले SN2 हेथांता। आमे देखिबा चिंता करिबा आमे आहुरी भी एग्जांपल डिस्कशन करिबा। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर you can write this is 1 2 3 means 2 methyl and 2 methyl 2 methoxypropane 2 methyl 2 methoxypropane reacts with HI to give tertiary butyl iodide and methyl alcohol or methanol। बुझी पारलो समझते ये क्वेश्चन ऑल क्लियर ऑन दिस या ना भी तुम केंदी लिखो जानी सारी ऑलरेडी। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस SN1 केंती हला बुझी पारलो। चलो नेक्स्ट आउट आमे प्रिपेयर करिबा बा आ गोटे क्वेश्चन करिबा। नाउ सपोज द क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक दिस CH3 CH2OCH3 ए बॉन्ड टाको देखो ए कंपाउंड को देखो। नाउ टू दिस कंपाउंड आई एम एडिंग HI हियर। एबे मु ए जगह HI ऐड करूची। हाँ मुझे क्वेश्चन पचारुची मते कह ए जगह HI टा रिएजेंट आकार काम करूची ना कैटालिस्ट आकार। हियर HI एक्ट्स एज ए रिएजेंट बिकज ए जगह से आउ लास्ट रे H+ और रिमूव हो ना डायरेक्ट से H+ ऐड होची अल्कोहल फॉर्मेशन करूची। सो हियर HI इज नॉट यूज्ड एज ए कैटालिस्ट रादर HI इज यूज्ड एज ए रिएजेंट हियर। नाउ इन दिस केस what will be the product? Which side bond will cleave? Does both the sides are same? No, because this side is methyl is there and this side ethyl is there. Now in this case which side bond is going to cleave? How to know? To know that first you have to be clear that whether the reaction will proceed through SN1 or the reaction will proceed through SN2। reaction SN1 through रू हबो ना reaction SN2 through रू हबो प्रथमे सेहीटा तुमको चेक करबा को पड़िबो। सो देखो ए जगह किसी टर्शियरी अछि कि नाही किछि बेंजाइल अछि कि बेंजाइल कार्बोकेटन हेबारो नाही ताहले डेफिनेटली रिएक्शन SN2 हेबो। बुझी पारलो माने सबस्ट्रेट को देखि देबो इफ नो टर्शियरी कार्बोकेटायन if no tertiary carbocation if no benzyl carbocation ताहले सेही केस रे if no this group then it is SN2 तापरे ताहले से SN2 ही हे जिवो एटा तुमे कंफर्म हे गलो। क्लियर SN2 हला परे नेक्स्ट गुटे इंपोर्टेंट पार्ट रहिबो I- जो अटैक करिथिबो बा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करिथिबो से को कार्बन को अटैक करिथिबो ता पाखरे दुईटा पॉसिबिलिटी अछि। माने तुम मन पक फास्ट स्टेप तो प्रोटोनेशन हेतिबो। चलो मु मेकानिज्म थ्रू याकू देखौची। लेट्स शो इट थ्रू द मेकानिज्म तापर हम प्रोडक्ट कथा चिंता करिवा। तो फर्स्ट स्टेप तो प्रोटोनेशन हेतिबो। प्रोटोनेशन फर्स्ट स्टेप रे हेतिबो माने इथेनॉल ऑक्सीजन विल अटैक टू द H+। तो एटा फर्स्ट स्टेप लिखि दिया जाऊ। सो फर्स्ट स्टेप तो प्रोटोनेशन मस्ट हेतिबो। नाउ आफ्टर प्रोटोनेशन हेला परे now that I- will attack and you know that it is through SN2 ये SN2 थ्रू रू हेबो it will proceed through SN2 माने लिविंग ग्रुप जीवार एवं न्यूक्लियोफाइल अटैक समान टाइम रे हेबो और साइमल्टेनियसली हेबो। सो नाउ इन दिस केस this I- will attack to which carbon? This is most important. It has two possibility. Either it may attack to this carbon because it has some delta positive charge on it or it can attack to this carbon. से either ए कार्बन को अटैक करि पारे किंबा ए कार्बन को अटैक करि पारे। एटे तुम डाउट रहबा कथा नुह जे ए कार्बन को से अटैक करिवो। नो, दिस विल अटैक टू आइदर दिस वन और टू दिस वन। नाउ टू व्हिच साइड इट विल अटैक? को साइड को से अटैक कले कम रिपल्सन पाइबो? देखो जदि से ए साइड को अटैक करिवो इफ इट विल अटैक टू दिस कार्बन देन इट विल गेट रिपल्सन बाय 3 हाइड्रोजन। से 3टी हाइड्रोजन द्वारा रिपल्सन पाइबो आ ए बॉन्ड तो पळै जिवो ठीक अछि। किंतु से जदि ए साइड को अटैक करिवो इफ इट विल अटैक टू दिस साइड सपोज इट इज पाथ 2 एंड इट इज पाथ 1 थ्रू आसिले से CH3 3टा हाइड्रोजन द्वारा रिपल्सन पाइबो। किंतु जदि पाथ 2 रे आसे ताहाले देखो
CH2 अच्छी ता संगे ए कार्बन सहित गोटे CH3 लगी माने गोटे बल्कियर ग्रुप अच्छी तो डेफिनेटली I माइनस जदि ए कार्बन को अटैक करिवो से बेसी रिपल्सन पाइबो बिकॉज इट हैज ए बल्कियर ग्रुप ऑन इट किंतु ए कार्बन पाखरे बल्कियर ग्रुप लगी नाही तो डेफिनेटली I माइनस को कार्बन को अटैक करिवो जो पाखरे से कम रिपल्सन पाइबो तो SN2 क्लियर हे गला परे तुमे एबे चेक करिवो जे से को कार्बन को अटैक कले कम रिपल्सन पाइबो एबे सपोज से जदि ए कार्बन को अटैक कला तारे प्रोडक्ट कोन बाहरला देखो this bond will now come to here so this path is correct because it will attract to the less repulsion side so the product is your CH3 CH2OH because this bond is breaked a bond cleavage break ହେଇଛି बा a bond break होउची ध्यान रखो a bond break होउची तो CH3 CH2OH हे गला तापर CH3I बाहरी गला so you got methyl iodide here तो ethanol और methyl iodide ते पाइलो and how you got it by the attack of nucleophile to the less repulsion side तो SN2 चूज कर देला परे एबे तुमको चूज करबा को पड़िबो जे व्हिच कार्बन इज लेस क्राउडेड आ जो कार्बन लेस क्राउडेड हेथिबो सेही साइड रो बॉन्ड क्लीवेज हेबो बुझी पारला समझते तो एई जगह रे आमे जे बिना मेकानिज्म रे लिखिबा डायरेक्टली केंती करि परिबा तो आमे प्रथमे जदी कंफर्म हे गला जे एटा तुम लिखि दिथबो मेकानिज्म समझते सो आमे डायरेक्टली केंती प्रोडक्ट लिखि परिबा बाय लुकिंग टू द सब्सट्रैक्ट वी आर कन्फर्म दैट द रिएक्शन विल गो थ्रू द SN2 रिएक्शन प्रथमे SN2 साइड रे हेबो आ जदी रिएक्शन SN2 साइड रे हेला इफ द रिएक्शन इज प्रोसीड थ्रू SN2 साइड तापर आमे देखिबा जे लेस क्राउडेड कार्बन कोटा अछि whether this carbon is less crowded or this carbon is less crowded माने बल्कियर ग्रुप का पाखरे कम अछि बा का पाखरे स्टेरिक रिपल्सन कम होबो तो डेफिनेटली दिस इज CH2 CH3 so बल्कियर ग्रुप is attached here but here 3 hydrogen is there so this carbon is less crowded and since this carbon is less crowded so this side bond will cleave आ जदि ए साइड रो बॉन्ड क्लीवेज वंस तुम कंफर्म हे गलो तापर एथरो आंसर इजी हे जिवो O- CH3+ ताले H+ I- ताले का सहित के लागिवो एटा मु बिना मेकानिज्म रे कहूजी खाली को साइड रो बॉन्ड क्लीवेज हला जानिबा पई से कांसेप्ट हमर निहाती दरकार जे SN2 रे लेस क्राउडेड कार्बन रे बेसी हुए ताले प्रोडक्ट कोन बाहरिबो CH3 CH2O- सहित के लागिवो H+ CH3 CH2OH प्लस CH3I मते लागुचे समस्त बुझी पारथिबो का ए साइड रो बॉन्ड काहे के क्लीवेज हला बिकॉज ये रिएक्शन SN2 थ्रू टू होउची और तापर ये लेस क्राउडेड का साइड हेची बुझी पारला कि क्लियर ऑल क्लियर ऑन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट तो मु जदी गोटे फ्लोचार्ट आकार ताको सिखेबी आमे कोन चिंता करूछु एई प्रकार रिएक्शन बा एई प्रकार प्रॉब्लम सॉल्व कला बेले कोन कहूची देखो आमे से इथर बा सब्सट्रैक्ट जहाँ भी तुम कहूच से इथर रे पहला आमे चेक करिबा वेदर कार्बोकेटायन इज फॉर्म और नॉट कार्बोकेटायन फॉर्म होउची बा हेउ नाही कार्बोकेटायन माने कोन बेंजाइल और टर्शियरी ए तीनटा ही तो ए दुईटा ही तुम जानी सफिशिएंट एक्चुअली एलाइल भी देई पारे बट एलाइल को लेकर क्वेश्चन प्राय आसु नहीं ए दुईटा कार्बोकेटायन को लेकर ही क्वेश्चन थी आइदर बेंजाइल कार्बोकेटायन अच्छी ना टर्शियरी कार्बोकेटायन अच्छी इफ यस जदि हे गला ताहले सेटा हे गला SN1 आउ SN1 जदि हे गला सो दैट साइड विल बी क्लिप्ड माने क्लीवेज on more stable carbocation side मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन साइड रे क्लीवेज हेबो और रिएक्शन रे SN1 थ्रू हेबो इफ नॉट जदि हो नाही इफ नो ताहले SN2 और SN2 जदि हे गला ताले क्लीवेज ऑन और क्लिप्ड ऑन भांगे CLEVD कली भी हवा क्लिप्ड ऑन लेस क्राउडेड साइड बा लेस स्टेरिक रिपल्सन कार्बन बुझीला समस्ते तो एतकी जिनस तुम यदि क्लीयर अच्छ ताहले जानी जीवो जे को साइड रे क्लीवेज हेबो
चलो मुझे गोटे क्वेश्चन दूसरी लेट्स सी अनदर क्वेश्चन मुझे चार्ट को देखिए केमती सॉल्व कर भी देखो ये बहुत इंपोर्टेंट पिला माने कौन सी भी एंट्रांस तुम ये कॉन्सेप्ट आकर क्लियर अच्छो ताले बिना मेकानिज्म रे डायरेक्ट आंसर कहि परिबो नाउ लेट्स सपोज यू आर गिवन ए क्वेश्चन लाइक दिस ए कंपाउंड देखिए हमको कंपाउंड रो ना कौन हम 1 2 3 2 इथोक्सी प्रोपेन हो सपोज 2 इथोक्सी प्रोपेन देला ता सहित HI मते कही बिना मेकानिज्म में कौन हम आंसर देख केमती चिंता कर इथर को देखल तुम्हें इथर रे ए भलिया किसी कार्बोकेटन हबार संभावना अच्छी कि चेक कर दियो दिस इज ए प्राइमरी दिस इज ए सेकेंडरी सो यू रूल्ड आउट so there is no carbocation and if no carbocation then the reaction will SN2 बुझी पारलो SN2 हो गला तो यही साइड तो रूल आउट हो गला तापरे क्लीवेज ऑन लेस क्राउडेड साइड क्लीवेज ऑन लेस क्राउडेड साइड माने आमे देखिबा ए जो दुईटा कार्बन भितरु को कार्बन रे रिपल्सन कम हबो देखो ए कार्बन रे गोटे हाइड्रोजन दुईटा CH3 लागी माने दुईटा मोलिक्युलर ग्रुप ए कार्बन रे दुईटा हाइड्रोजन गोटे मोलिक्युलर ग्रुप सो व्हिच वन इज लेस क्राउडेड this one is less crowded and as this one is less crowded so this side will clip got it so when you know that this side will clip then you can easily write the answer minus plus so I minus H plus so what will be your answer this plus will attack to I minus or I minus will attack to this carbon so the answer is CH3 bond CH2 I got it and O minus will attack to H plus so your answer is OH so you got isopropyl alcohol with ethyl iodide बुझी पारलो बहुत क्लियरली एटा बुझाई आई डोंट थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड एनी और इजी वे मत लगुच इजीएस्ट वे है आउ एटा सब पिला बुझी पारुथबो केमती मु करूची जे नो नीड टू मेमोराइज एट ऑल लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन सपोज बेंजाइल मिथाइल ईथर इज देयर टू दिस HI इज एडेड यही जगार आमको HI देछि आमको जब यही जगार HI ऐड करने कही ताले प्रोडक्ट कौन हम कह इन दिस केस इफ यू आर आस्क्ड टू ऐड HI ताले प्रोडक्ट कौन हम फर्स्ट यू हैव टू क्लियर दैट SN1 और SN2 रिएक्शन रे देखो कार्बोकेटन फॉर्मेशन हबार चांसेस अच्छी बिकॉज बेंजाइल कार्बोकेटन अच्छी दैट इज स्टेबल कार्बोकेटायन एंड एज इट इज स्टेबल कार्बोकेटायन so you know that this reaction will proceed through SN1 mechanism रिएक्शन जो SN1 थ्रू कहा गला माने क्लीवेज को साइड रहबो क्लीवेज SN1 नहीं साइड क्लीवेज ऑन मोर स्टेबल कार्बोकेटन साइड माने ए जगह कोडा मोर स्टेबल कार्बोकेटन बेंजाइल कार्बोकेटन मोर स्टेबल so this side will clip and when this side will clip now you can easily give answer minus and plus so I minus will attack to here and H plus will attack to here so what is the product your product is benzene CH2I plus CH3OH so methanol and benzyl iodide methanol and benzyl iodide is your right answer बुझी पारल कि समस्ते all clear on this मते लागुचे समस्ते बुझी पारथिबो all are clear on this topic the reaction with HI समस्ते रिएक्शन विथ HI बुझी पारुछ समस्ते ओके वेरी गुड सो यही जगार आमर फास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हो गला जो जगार मुझे एनफ क्वेश्चन डिस्कसन करी सागर मुझे तुमको स्टेट ब्यूरो बुक रो क्वेश्चन भी देवी जोटा को तुम ये सॉल्व कर आई टॉपिक ऊपर तुम कॉन्फिडेंट को पूरा तुम हाई रख ओके नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन electrophilic substitution reaction this is very important also electrophilic substitution reaction केमती हेबो so first you have to know the nature of that ether group एटा एरोमेटिक ether कथा ही उठाए suppose आमे एठी OR दे देला now what will be the nature of this OR or anything it may be aromatic ether कथा ही कहा होची जगह सो यू नो दैट इट विल फिनल भला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ड्रॉ हो पारिबो दिस इलेक्ट्रॉन विल कम टू हियर दिस इलेक्ट्रॉन विल कम टू हियर so what is the resonating structure you will get here
you will get the resonating structure like this, plus this electron will come to here. So these are the resonating structure you can draw easily. So from this resonating structure, it is very clear that negative charge is developed on your ortho and para position. Negative charge देखो ortho और para position रे develop होउची. And since negative charge is developed on ortho and para position, देखो ortho position और para position रे negative charge develop होउची. Since the negative charge is developed on ortho and para position, that's why it is very clear that when the electrophile will attack, it will attack or its attack will be takes place on the ortho and para position. Ortho और para position रे attack हबो because ortho और para position रे electron density बेसी अछि. That's why this OR is called an ortho para directing group. OR को गोटे ortho para directing group कहा जाए. And since it is donating electron to the benzene ring, it will also activate the electrophilic substitution reaction. So OR is an ortho-para directing and activating group. Activating group रो अर्थ होला benzene comparison रे एथिरे बेसी electrophilic substitution reaction हेबो. So if compared to benzene, if it is more suitable for electrophilic substitution reaction, then that group is called activating group. So this is the nature of OR group. एटा क्वेश्चन पचारे. तो इलेक्ट्रोफाइल जेतेबेले आसीबो सीए ऑर्थो और पारा पोजीशन को अटैक करिवो. एतकी कांसेप्ट जदि क्लियर अछ ताले ए नंबर तमे इजीली करि पारिवो. यू कैन इजीली डू ऑल दिस रिएक्शन. एटा बुझियला. चलो वन बाय वन आमे डिस्कशन करिबा. बहुत शीघ्र कंप्लीट हे जिवो. नो इश्यू. तमे आराम से करि पारिवो. केमति आकार देखो. सपोज हमको इनिशियल देइछि आ इनिशियल रे ही क्वेश्चन देबो, अन्य किछि देबो नाही. दिस इज कॉल्ड इनिशियल. You will add here Br2. आउ ये जगह मीडियम रे इथानोइक एसिड देई थाए और एसिटिक एसिड मीडियम रे था. इथानोइक एसिड लिखले भी चलिबो और एसिटिक एसिड लिखले भी चलिबो. दिस इज द सॉल्वेंट एक्चुअली. एसिटिक एसिड होची ये जगह रे सॉल्वेंट. इलेक्ट्रोफाइल की ये जगह रे Br2 जो अछि इलेक्ट्रोफाइल ता हला एक्चुअली Br+. तो डेफिनेटली आ गुटे हाइड्रोजन सहित मिसी की ऑर्थो और पारा पोजीशन ही रिएक्शन हबो. तो ऑर्थो Br2 जो देला तो ऑर्थो और पारा पोजीशन रो हाइड्रोजन आ गोटे Br पळे जिवो, गोटे Br लागि जिवो. तो को पोजीशन रे जाई कि Br2 रो रिएक्शन हबो, गोटे ऑर्थो पोजीशन रे हबो आ गोटे पारा पोजीशन रे हबो, बिकॉज इट इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो प्रोडक्ट कोन बाहरिबो. प्रोडक्ट यू विल गेट OCH3 रहिला ऑर्थो पोजीशन रे गोटे ब्रोमीन लागिवो. तो एथिरे गोटे HBr लॉस हेछि. सो वन HBr इज लॉस्ट फ्रॉम द ऑर्थो पोजीशन. Similarly, another H of para position will also lost as a HBr. So two HBr will be lost, and you will product and you will get OCH3 theta, and you will get two different type of product. So you are getting two different type of product, and at the para position Br will be attached. Para position रे Br लागिवो गोटे आ ortho position रे गोटे Br लागिवो. I hope you all are clear on this. तो 2 HBr बाहरी गला. तो सेथिपे कोन करबो पड़िबो जगह रे 2 मोल रो Br2 नेबाको पड़िबो आ 2 मोल रो एनिसोल लिखिबाको पड़िबो. एतकी एटा तुम एग्जाम रे लिखिबा दरकार नै. तुम निज जानिबा पई खाली मु कर देली. ठीक अछि. थ्योरी कोन हबो. एनिसोल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन in the presence of ethanoic acid or in ethanoic acid medium. It gives ortho bromo anisole and para bromo anisole. Now question is which one is major. डेफिनेटली इथरे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्वेश्चन ही नहीं. सो स्टेरिक रिपल्सन दृष्टिकोण रु एठी बेसी रिपल्सन हबो. सो इट इज माइनर एंड पारा इज द मेजर. पारा हला मेजर आर एटा हला माइनर. बुझी पारला समस्त एति की क्लियर. ऑल क्लियर ऑन दिस. ऑल क्लियर ऑन दिस. तो ब्रोमिनेशन हे गला. चलो अबे हम गोटे नाइट्रेशन पढ़िबा. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द नाइट्रेशन. नाइट्रेशन रो रिएजेंट कोन रहे. से एनिसोल सहित ही क्वेश्चन देव. आ नाइट्रेशन रिएजेंट दिए नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट आकार काम करिवो आ नाइट्रिक एसिड एठी ऐड करा जिवो. नाइट्रिक एसिड को केमति लिखिवो HONO2 आकार तुम लिखिवो. एटा हम सिखैतिली ऑलरेडी. बिकॉज HONO2 लिखिले
अर्थ पोजिशन हाइड्रोजेन आउ OH वाटर होगी लॉस हम ताहले प्रोडक्ट कौन बाहर जगह H OH लॉस हो गला वाटर होगी सो एट योर अर्थ पोजिशन ए NO2 ग्रुप विल अटैच एंड नॉट ओनली एट द अर्थ पोजिशन ओनली केवल अर्थ पोजिशन रिएक्शन हेबो नहीं बिकॉज इट इज अर्थ पारा डायरेक्टिंग ग्रुप पारा पोजिशन भी सेमती रिएक्शन हम पारा पोजिशन भी H आउ OH वाटर हो तो टोटाल 2 मोल रो वाटर हो गला एंड यू गॉट 2 प्रोडक्ट गोटे है ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल आ गोटे है पारा नाइट्रो एनिसॉल व्हिच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एटारे भी स्टेरिक रिपल्सन रीजन रहिबो दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो है माइनर पारा है मेजर ये सब इजी बोली मुझे स्पीड कहूँ यही जगह H2SO4 कैटालिस्ट आकार काम करूँ मन रखी था इट इज नॉट द रिएजेंट हियर इथे रिएजेंट है नाइट्रिक एसिड गॉट इट ऑल क्लियर ऑन दिस ये भी बुझीपार समस्ते ये बुझीपार समस्ते नाउ लास्ट वी विल डिस्कस हियर दैट इज फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन आ मुझे फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन रे कौन करा जाए फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन रे तुम एसिड क्लोराइड और तुम्हें ऐड करो अल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कौन हो फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन रे फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन कहला माने अल्किल हैलाइड निया सपोज CH3Cl निगला आउ एनहाइड्रस AlCl3 मस्ट रहिबो कैटालिस्ट आकार एटा होजी फ्रीडिल क्राफ्ट रो कंडीशन ठीक सेमती एटा को फ्रीडिल क्राफ्ट अल्किलेशन कह आ फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन जदि कहबो ताले सेही टाइम रे एसिड क्लोराइड ऐड करा जिवो सेही एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस रे माने याकू कहा जाए फ्रीडिल क्राफ्ट अल्किलेशन जो जगह गोटे अल्किल ग्रुप ऐड हेबो फ्रीडिल क्राफ्ट अल्किलेशन कहा जाए आउ याकू कहा जाए फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन जो जगह गोटे एसाइल ग्रुप ऐड हेबो से एनिसॉल सहित ही देव जेकोसी तभी को हम फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन कहि परिबा इट इज कॉल्ड फ्रीडिल क्राफ्ट अल्किलेशन एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन प्रोडक्ट कौन हेबो वेरी इजी CH आउ CH3 रो Cl CH3Cl बॉन्ड रो Cl पळेबो H आउ Cl लॉस हो गला HCl हो गला के लाग गला से जगह रे एनिसॉल रो अर्थ पोजीशन रे के लागिवो एबे OCH3 के लागिवो एबे H आउ Cl पळे लागिवो के CH3 so you got one product and also you will get at the para position also so you are getting orthomethyl anisole and paramethyl anisole which one is major which one is minor very simple steric repulsion is there so this is minor and this is major गोटे है minor गोटे है major ठीक सेमती यार भी आंसर कौन हम अर्थ पोजिशन रो H हाँ ये 2 मोल नहीं जीवो 2 मोल नहीं जीवो 2 मोल रो HCl बाहर ठीक सेमती ये जगह भी कौन हम 2 मोल रो एसिड क्लोराइड नहीं जीवो 2 मोल रो एसिड क्लोराइड नेला परे H आउ Cl लॉस हो गला HCl गला परे कौन बाहरला जगह OCH3 देखो ए Cl लॉस हो माने ये रेगी लागिवो CH3 लागिवोनी ए बॉन्ड लॉस हो ए बॉन्ड ब्रेक होची माने दिस वन विल गो टू अटैच टू दिस कार्बन सो बॉन्ड टू C डबल बॉन्ड OCH3 सेमती पारा पोजीशन रे भी लागिवो OCH3 प्लस 2 HCl मत लगुच बुझी पार्थबो ए कंपाउंड ना कौन हम ए कंपाउंड ना हुए या को आम कहि परिबा एटा को सब्स्टिट्यूएंट हे जिवो एबे यू कैन से दिस इज ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनॉन या को तुमे ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनॉन कहि परिबो आ ठीक सेंती या को पारामिथॉक्सी एसिटोफेनॉन कहि परिबो कारण बेंजीन और CH3 एका संगे C डबल बॉन्ड ओ सहित लागिले ताको एसिटोफेनॉन कहा जाए आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दिस एतकी रे तुमर इथर रो सब केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हैला एथिकार माने ए वर्षर सिलेबस अनुसार मु पढ़ेछि बाकी जहाँ स्टेट ब्यूरो बुक रे थिबो मु ताको डिस्कशन करी नै बिकॉज सिलेबस रे एतिकी ही देछि सो यू आर गेटिंग ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनॉल एंड पारामिथॉक्सी एसिटोफेनॉल व्हिच वन इज मेजर व्हिच वन इज माइनर दिस वन विल बी माइनर दिस वन विल बी मेजर पारा एठी सबले मेजर ही हेबो बिकॉज एथिरे किछि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हबार संभावना नाही ओके सो with this we will end here today's class.